हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्टडी। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ MCQ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ MCQ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ z = x + η y, xy belongs to real, एक ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ x, ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ y। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਅਲ z = x, ਇਮੇਜਨਰੀ z = y। एग्जाम्पल z = 3 + 4 η, एक की है ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 4। ਤਾਂ z ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x² + y² √ ਇਹ ਆਪਣਾ z ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ y/x ਦੇ। ਤਾਂ ਆਈਟਾ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ √-1 ਦੇ। ਆਈਟਾ ਸਕੁਅਰ = -1, ਆਈਟਾ ਕਿਊਬ = -ਆਈਟਾ, ਆਈਟਾ 4 = 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ z = x + η y, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕੀਤਾ xy। ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ m ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ m ਹੈ। ਆਪਣੀ OM ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ x, MP ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ y। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲਸ z। ਲੰਬ ਸਕੁਅਰ + ਆਧਾਰ ਸਕੁਅਰ = ਕਰਨ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ z ਆ ਗਿਆ x² + y² √ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ। ਆਧਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x, ਉਹੀ ਲੈ ਲਿਆ x ਬਟਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਢਿਆ z ਮੋਡੂਲਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ = PM/OP। PM ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? PM ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੰਬ ਬਟਾ OP ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ y/z ਮੋਡੂਲਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ z ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਆ z ਮੋਡੂਲਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, y ਆ ਗਿਆ z ਮੋਡੂਲਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ z = z ਮੋਡ ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ z ਮੋਡ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। z ਮੋਡੂਲਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। z ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ r ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਕੀ ਆ ਗਿਆ? r ਆ ਗਿਆ z ਮੋਡ। z ਮੋਡ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ x² + y² √ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮ। ਆਇਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ e ਦੀ ਆਈਟਾ ਥੀਟਾ = ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਆਈਟਾ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਹੈ r ਕੋਸ ਥੀਟਾ + ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ r × e ਦੀ ਆਈਟਾ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਇਲਰ ਫਾਰਮ
आइलर फॉर्म हो गई अपने को z इक्वल टू r इंटू ई दी आइटा थीटा थीटा की है आर्गूमेंट r की अपने को z मोड जिसमें लेंथ भी कह लेंगे एक लेंथ है। तो हुण आप MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है अपने को इफ n इज एन ओड इंटीजर देन 1 प्लस आइटा द पावर 6n प्लस 1 माइनस आइटा द पावर 6n इज इक्वल टू ए ऑप्शन 0 B 2 C -2 D नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते अपन गिवन है 1 प्लस आइटा दी पावर 6n प्लस 1 माइनस आइटा दी पावर 6n। तो इसनों आप इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा दी स्केयर दी पावर 3n प्लस 1 माइनस आइटा स्केयर दी पावर 3n। तो इसनों स्केयर नूं आप ओपन किया ये बन गया 1 प्लस आइटा स्केयर प्लस 2 आइटा होल पावर 3n प्लस 1 प्लस आइटा स्केयर माइनस 2 आइटा होल पावर 3n। इसमें सॉल्व किया ये बन गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा दी पावर 3n प्लस ये बन गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा दी पावर 3n। तो ये 1 नाल 1 कैंसल हो गया अपने को रह गया 2 आइटा दी पावर 3n प्लस सिमिलरली ये 1 नाल 1 कैंसल होया अपने को रह गया माइनस 2 आइटा दी पावर 3n। इत्थों 2 आइटा दी पावर 3n कॉमन कढ लिया विच की रह गया 2 दी पावर कॉमन कढ लिया आइटा नूं विच रहन विच रह गया आइटा दी पावर 3n प्लस माइनस आइटा दी पावर 3n। हुण आपां नूं n दिता है उन्होंने क्वेश्चन विच की आपां नूं दिता n इज एन ओड इंटीजर। जेकर हुण आपां इत्थे n नूं ओड भरांगे अपने कोल की उपर बनेगा ओड ही बनेगा पावर विच। तो ये माइनस आइटा दी पावर ओड करांगे की रहेगा माइनस बाहर आ जाएगा माइनस आइटा दी पावर 3n इहदे नाल कैंसल हो जाएगा तो ये बन गया 2 दी 3n इंटू 0। तो आंसर अपने को की आ गया 0। तो ये ऑप्शन अपनी राइट आंसर आ गई। सेकंड क्वेश्चन है अपना द कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन 1 माइनस आइटा माइनस 1 देन दैट कम्प्लेक्स नंबर इज आपने को ऑप्शन दी हैं ए माइनस 1 अपॉन आइटा प्लस 1 B 1 अपॉन आइटा माइनस 1 C 1 माइनस 1 अपॉन आइटा माइनस 1 D 1 अपॉन आइटा प्लस 1। अपन गिवन की दिता है गिवन z द कंजुगेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा माइनस 1 अपन दिता है। हुण z कंजुगेट द कंजुगेट किया अपने को सारे दा कंजुगेट हो गया। अपन पता है जो z द कंजुगेट करांगे तो की आ जाएगा z दे बराबर। तो ये बन गया z जो इनका कंजुगेट किया 1 अपॉन आइटा माइनस 1 द कंजुगेट इस ते प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 द कंजुगेट अलग हो जाएगा अपॉन आइटा माइनस 1 द कंजुगेट अलग हो जाएगा। अपने को एक प्रॉपर्टी होंदी है z1 अपॉन z2 सारे दा कंजुगेट इज इक्वल टू z1 दा कंजुगेट अपॉन z2 दा कंजुगेट। यही प्रॉपर्टी लग के अपने को इसका अलग हो गया कंजुगेट इसका अलग हो गया ये बन गया 1 क्योंकि इस दे नाल आइटा तो है नहीं तो मतलब इसका कंजुगेट की होएगा 1। कंजुगेट हुंदा की है जिवें कि आपने को z इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा दिता है तो इस विच z कंजुगेट करांगे तो बन जाएगा 3 आइटा वाली टर्म का जो कोफिशिएंट जो साइन होएगा चेंज हो जाएगा ये बन जाएगा 3 प्लस 4 आइटा। इसी प्रकार 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा आइटा माइनस 1 का कंजुगेट किया वो अपने को बन गया माइनस आइटा माइनस 1। तो माइनस कॉमन कट के अपने को बन गया माइनस 1 अपॉन आइटा प्लस 1। यही अपना आंसर है ये ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 0 इज ए ऑप्शन है 1 B 2 C 3 D 4। सिमिलरली लैट z नूं हमेशा आप लैट की करांगे x प्लस आइटा y z नूं लैट कर लिया x प्लस आइटा y।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ z ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ z ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। z ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊ z ਦੀ, x ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ y ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ x ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ ਇਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ y। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ? 0। ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਮੇਜਨਰੀ ਬਣ ਗਿਆ 2xy ਮਾਈਨਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ y ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 2x ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ y ਦੀ 0, x ਦੀ 1/2। ਹੁਣ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ 0 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 1/2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √3/2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ x ਦੀਆਂ 1/2 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ √3/2 ਤੇ -√3/2। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। फोर्थ क्वेश्चन है अपने को, इफ z mod +2 is equal to imaginary z, then z equal to xy lies on। ये अपने को ऑप्शंस दित्तियां हुई हैं 4। सिमिलरली z ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ x plus आइटा y। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? z mod +2 is equal to imaginary z। imaginary z ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? imaginary z ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ x plus आइटा y +2 is equal to y। ਇਸ ਦਾ ਮੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੇਅਰ plus y ਸਕੇਅਰ ਦਾ √ +2 is equal to y। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੇਅਰ plus y ਸਕੇਅਰ is equal to y minus 2 ਸਕੇਅਰ। x ਸਕੇਅਰ plus y ਸਕੇਅਰ is equal to ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ y ਸਕੇਅਰ plus 4 minus 4y। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ y ਨਾਲ y ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੇਅਰ is equal to 4 minus 4y। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, x ਸਕੇਅਰ is equal to 4 minus 4y आपने कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका डी नन ऑफ दीज आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ -7 - 24 आइटा दी पावर 1/2 is equal to x minus आइटा y, then x square plus y square is equal to a √25 b 25 c 15 d none of these। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ -7 - 24 आइटा दी पावर 1/2 is equal to x minus आइटा y। 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ √√ -7 - 24 आइटा is equal to x minus आइटा y। स्केयरिंग बोथ साइड स्केयरिंग करते अपने को बन गया -7 - 24 आइटा is equal to x minus आइटा y दी स्केयर। x minus आइटा y दी स्केयर ਨੂੰ ओपन किया अपने को आ गया x स्केयर plus आइटा y स्केयर minus 2xy आइटा। ये बन गया -7 - 24 आइटा is equal to x स्केयर minus y स्केयर minus 2xy आइटा। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इन्हां दी बोथ साइड मॉडुलस ले लिया अपने को बन गया -7 - 24 आइटा दा मोड
इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy आइटा का मोड ओपन किया बन गया -7 द स्केयर प्लस -24 द स्केयर अंडर रूट। सिमिलरली इनका बन गया अपने को एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस -2xy का होल स्केयर का अंडर रूट। इस सोल्व करने बन गया अपने को अंडर रूट 625। इस दी स्केयर का फॉर्मूला ओपन करते इस दी स्केयर करते बन गया अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर का अंडर रूट। तो इस प्रकार अपने को की आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25। तो बी ऑप्शन आ गया अपने को 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इफ Z1 and Z2 be two complex number then which statement is true? ए ऑप्शन है Z1 plus Z2 mod less than equal Z1 mod plus Z2 mod। बी ऑप्शन है Z1 minus Z2 mod is equal to Z1 plus Z2 mod। सी ऑप्शन है Z1 plus Z2 mod greater than equal Z1 minus Z2 mod। डी ऑप्शन है Z1 plus Z2 mod greater than equal Z1 mod plus Z2 mod। अपने को ट्रायंगल इनइक्वालिटी होंगी एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होंगी है Z1 plus Z2 mod less than equal Z1 mod plus Z2 mod। तो ये सीधा सीधा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रिजल्ट ही पूछ लिया गया है। तो ये ऑप्शन आ गया अपने को आंसर। इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज दे रहे हैं। फर्स्ट है Z1 प्लस Z2 mod लेस देन इक्वल Z1 mod प्लस Z2 mod। सेकंड है Z1 माइनस Z2 mod लेस देन इक्वल Z1 mod प्लस Z2 mod। थर्ड है Z1 प्लस Z2 mod ग्रेटर देन इक्वल Z1 mod माइनस Z2 mod। डी है Z1 माइनस Z2 mod ग्रेटर दैन इक्वल Z1 mod माइनस Z2 mod। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपोर्टेंट है ने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अंडर 3 प्लस आइटा द पावर 100 इज इक्वल टू 2 द पावर 99 a प्लस आइटा b देन a स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू। ए ऑप्शन है 2, बी है 1, सी 3, डी 4। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। अपन गिवन की दिता है अंडर 3 प्लस आइटा दी पावर 100 इज इक्वल टू 2 दी पावर 99 ए प्लस आइटा बी। टेकिंग की कर लिया मॉडुलस बोथ साइड ले लिया। ये अपने को बन गया मोड अंडर 3 प्लस आइटा दी पावर 100 इज इक्वल टू 2 दी पावर 99 ए प्लस आइटा बी का मॉडुलस का अपन पता है भी ये बन गया अंडर 3 द स्केयर प्लस 1 द स्केयर द अंडर रूट द पावर 100 इज इक्वल टू 2 द पावर 99 ए स्केयर प्लस बी स्केयर का मोड। जो इसका मोड किया बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। इस ओपन करते बन गया अंडर रूट 4 द पावर 100 इज इक्वल टू 2 द पावर 99 ए स्केयर प्लस बी स्केयर मोड बी स्केयर का अंडर रूट। ये बन गया 2 दी पावर 100 इज इक्वल टू 2 दी पावर 99 ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। तो इतों की बन गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 2 दी पावर 99 है पावर कट्टी गई रह गया 2 कला। ये बन गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 2। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितने बराबर होगा 4 दे। तो इसका D4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आइटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आइटा इज। ये ऑप्शन दी हैं अपने को। Z इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 3 प्लस आइटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आइटा। इसनू कंपलैक्स नंबर में चेंज करने लिए रैशनलाइज कर दिता अंडर रूट 3 प्लस आइटा अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आइटा। ये बन गया अंडर रूट 3 प्लस आइटा द स्केयर अपॉन
ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा के बन गया √3 दी स्केयर माइनस आइटा दी स्केयर। इस नूं ओपन करन ते बन गया अपने कोल 3 - 1 प्लस 2 √3 आइटा अपॉन ये बन गया 3 + 1। इस नूं सोल्व करन ते बन गया 2 + 2 √3 आइटा अपॉन 4। ये अपने कोल बन गया 1.2 प्लस √3.2 आइटा। आर्गूमेंट का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल हुंदा है आर्गूमेंट टेजेंट अल्फा या थीटा कुछ भी लै लो इज इक्वल टू y/x। तो इत्थों अल्फा की आ गया टेजेंट इनवर्स y/x। आर्गूमेंट की आ गया अपने कोल टेजेंट इनवर्स y/x। हुण इत्थे y अपना कितना है √3/2, x कितना है 1/2। तो इस नूं ये बन गया अपने कोल टेजेंट इनवर्स √3। √3 की वैल्यू कितने होंदी है टेजेंट की होंदी है अपने 60 डिग्री ते बन गया π/3। π/3 इसका अपने को क्या आ गया राइट ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 द एम्पलीट्यूड ऑफ द 1 - cos थीटा - आइटा sin थीटा इज। ऑप्शंस अपने को लगिया लेट कर लिया z = 1 - cos थीटा - आइटा sin थीटा। रियल पार्ट अलग कर लिया इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। एम्पलीट्यूड अपने को की हुंदा टेंजेंट इनवर्स y/x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कितना है अपने को sin थीटा, x कितना y अपने को माइनस sin थीटा अपॉन x कितना 1 - cos थीटा। माइनस बाहर आ गई बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। हुण इत्थे की लगाया फार्मूला लगा दिता sin 2 थीटा इज इक्वल टू किंदे इक्वल हुंदा 2 sin थीटा cos थीटा दे। यही फार्मूला इत्थे लग गया। ये बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 अपॉन थल्ले 1 - cos थीटा इनका फार्मूला लगा दिता। ये बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसमें 2 ना 2 कटा गया एक साइन गया चला। ये बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स cos थीटा अपॉन 2 अपॉन sin थीटा अपॉन 2। ये बन गया माइनस टेंजेंट इनवर्स cot थीटा बाय 2। हुण cot थीटा बाय 2 नूं किस तरह लिख सकते हैं टेंजेंट पाई 90 - थीटा ले टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू cot 90 - थीटा। सिमिलरली cot थीटा किंदे बराबर हुंदा है टेंजेंट 90 - थीटा। इस नूं लिख दिता cot थीटा बाय 2 नूं टेंजेंट 90 - थीटा बाय 2। इस नूं सॉल्व करन ते अपने कोल बन गया थीटा - π/2। यही अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा दी होल पावर n इज रियल। ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी 8 ऑप्शन है, डी नन ऑफ दीज। तो सोल्यूशन फर्स्ट अपन दिता 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा। इस नूं पहला कंपलैक्स नंबर चेंज किया रैशनलाइज कर दिता। ये बन गया 1 + आइटा दी होल स्क्वायर थल्ले बन गया 1 + आइटा 1 - आइटा। फॉर्मूला लग गया a² - b²। ये बन गया 1² + आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। नीचे बन गया 1² + आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 - प्लस हो गया। ये बन गया 1 - 1 + 2 आइटा अपॉन 2। इस नूं कट के आ गया अपने को 2 आइटा अपॉन 2। 2 आइटा अपॉन 2 आ गया इत्थे 2 नाल 2 कैंसल हो गया। तो कि अपने को रह गया आइटा दी पावर n। जदों n नूं 1 पुट किया ये बन गया आइटा दी पावर n आइटा दी पावर 1। तो आइटा की है नो रियल है। जदों n नूं 2 पुट किया ये बन गया आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू किंदे बराबर हो गया -1 दे। आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भावें नैगेटिव है पर है तो रियल। तो लीस्ट वैल्यू की आ गई n दी 2। n दी 2 लीस्ट वैल्यू तो अपने को -1 रियल नंबर आ गया। सो इसका
लीस्ट वैल्यू एंड 2 आंसर। इम्पोर्टेंट है जो अपना टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ अ कंप्लैक्स नंबर। इसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इफ z इक्वल टू a प्लस आइटा b तो स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू फार्मूला की होंगे प्लस माइनस अंडर रूट z मोड प्लस a अपॉन 2 प्लस आइटा अंडर रूट z मोड माइनस a अपॉन 2। सिमिलरली जे माइनस आ गया तो इत्थे भी माइनस लग जाएगा। इसमें याद करने का तरीका अपने को फॉर्मूला होंगे z मोड प्लस a बाय 2 प्लस आइटा z मोड माइनस a बाय 2। जेकर माइनस का निशान हो तो इत्थे माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्लैक्स नंबर 7 प्लस 24 आइटा। ये ऑप्शंस दी हुई अपने को। लैट कर लिया z इक्वल टू 7 प्लस 24 आइटा। अपन पता फॉर्मूला की होंगे स्क्वायर रूट कंप्लैक्स नंबर का कढ़न का प्लस माइनस मोड z प्लस a बाय 2 अंडर रूट प्लस आइटा z मोड माइनस a बाय 2 अंडर रूट। तो अपने को a की है इत्थे रियल नंबर, रियल पार्ट है ए किंदे बराबर है 7 दे। z मोड पहला निकाल लिया, ये बन गया अपने को 7 दी स्क्वायर प्लस 24 दी स्क्वायर दा अंडर रूट इज इक्वल टू इन्हें सोल्व करके आ गया अपने को 25। ये अपन दिता है 7। तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी ने। z मोड की वैल्यू ए की वैल्यू पुट की है अपने को बन गया प्लस माइनस 25 प्लस 7 बाय 2 अंडर रूट प्लस आइटा 25 माइनस 7 बाय 2 अंडर रूट। इसनों सोल्व करते बन गया अंडर रूट 16 प्लस आइटा अंडर रूट 9। सोल्व करके आ गया अपने को प्लस माइनस 4 प्लस 3 आइटा। ये अपना की आ गया ए ऑप्शन आंसर। थैंक यू। चैनल को सबसक्राइब जरूर कर देना।